Right. Yes. So we will complete our uh, all these series things in today itself. Okay. So the main things that we did not discussed in last sessions was Jenkins. Okay. Right. तो Jenkins ये बहुत important है. As part of your deployment, see there are a lot of uh, tools and technologies are there for deployment purpose. So if you know about the Docker and all that things, Docker Compose majorly, so it would be also fine for you. Okay, it is not necessary to have the knowledge about Kubernetes and Ansible and Terraform, because if you see, lot of tools are there. Okay, so as part of development, it is not necessary to have the knowledge about Kubernetes and all. Okay, if you know about the Dockerization, Docker, because you don't have direct contact with your Kubernetes clusters. Okay, your roles and responsibilities is like, you need to create the Docker images, you need to create the containers, you need to check the logs of container, you need to check the problems which are occurring inside that container, you need to verify the container whether this container is working fine or not, whether the port number is good or not, whether this container is in the running state or not, it is in the stop state or exit state. ये पता करना आपका काम रहता है. Okay, so the main thing you need to keep in your mind, there are a lot of tools in DevOps, and as part of development, we choose only a development perspective tools only, right? So development में ये जो मैंने अभी तक tools जितने बताए हैं, that tools are 100% genuine and important. Okay, आपको वो पता ही होने चाहिए. Okay, so again, in some companies, Docker is not using, in some companies Docker is using. It's totally depends on the project, it totally depends on the company. Okay, कुछ लोग यूज करते, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, बट देयर इज अ वन टूल जो कि हर कंपनी यूज करती है. ओके, एंड दैट टूल इज नथिंग बट योर जेनकिंस. वो टूल अपने को आज अंडरस्टैंड करना है, एंड टुडे वी विल डिस्कस होल CI/CD पाइपलाइन. CI/CD पाइपलाइन मतलब क्या? Deployment, whole deployment we will discuss. We will check how to create the pipeline. I have already created one pipeline. Okay, so अब ये pipeline again बनाने का काम आपका नहीं रहता है. Okay, pipeline creations, Jenkins server creation, all servers creation, ये अपना काम नहीं रहता है. ये किसका काम रहता है? DevOps engineers का. So then what's your work? आपका वर्क क्या है फिर? So whatever the pipeline they have created for you, हमको उस पाइपलाइन को रन करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है. एंड जो भी बिल्ड करने के बाद एरर इश्यूज आते हैं, उन एरर इश्यूज को अपने को ट्रबल शूट करना पड़ता है. सो वहां तक आपको जेनकिंस आना चाहिए, बिकॉज अगेन जेनकिंस इज also a good or also more things present inside that tool. So it is also a good and more what we can say technologies oriented theme. Okay, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी, उसमें प्लगइन आते हैं. जैसे अपने इक्लिप्स है ना, अभी बहुत सारे लोग इक्लिप्स यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इंटेलिजी यूज कर रहे हैं, उसमें प्लगइन्स आते हैं. वैसे जेनकिंस में भी प्लगइन्स आते हैं. यू कैन इंटीग्रेट डॉकर, मैवेन, यू कैन इंटीग्रेट गिटहब, you can integrate clusters, you can integrate other services, other servers, you can integrate cloud with Jenkins. So it is very big tool. Okay, and as part of development, आपको Jenkins कहाँ तक आना चाहिए? We will discuss one more thing, like आफ्टर डेवलपमेंट आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. अभी मैंने डेवलप किया है, का तो कोड डेवलप किया है. आफ्टर दैट हमको क्या करना पड़ता है एग्जैक्टली? तो हमको वो डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है. सो इन एडवांस जावा लॉट ऑफ टाइम आई हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स. सो डिप्लॉयमेंट में आप बहुत सारे वे से डिप्लॉयमेंट करते हो. देयर इज नो एनी स्पेसिफिक वे. सो लॉट ऑफ वेज आर देयर. सो राइट नाउ करंटली मार्केट के अंदर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर चल रहा है. So in microservice architecture, every service acting as a single independent project. Okay, right? अभी ये तो terminologies I hope सब लोगों को मालूम होगा. So each and every project we need to build it, we need to compile it, we need to package it, and we need to store this Artifactory. Inside Artifactory store tools, we need to store these things inside a Docker image. We need to create Docker.
सो डिप्लॉयमेंट में बहुत सारे लोग एक साथ में टूट पड़ते हैं, तो इनको एक अलाइन करने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए कि बाबा पहले आप काम करो, आपका काम होने के बाद फिर आप करो, आपका काम होने के बाद फिर आप करो, तो वी नीड टू कीप दिस इन वन अलाइन, ओके, वी नीड टू कीप दिस इन वन पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन के अंदर अपन किसके थ्रू करते हैं, जेनकिंस के थ्रू करते हैं। जेनकिंस इज वन काइंड ऑफ मॉनिटर, वो मॉनिटरिंग करता है वेदर मैवन इज डूइंग देयर टास्क और नॉट, वेदर डॉकर इज डूइंग देयर टास्क और नॉट, वो बस मॉनिटर करता है, ऑर्डर करता है, यस मैवन डू योर टास्क, डॉकर डू योर टास्क, वो बस क्या करता है, ऑर्डर करता है। ओके, सो अभी जेनकिंस के बारे में हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ऑलराइट, ओके, आई होप आपको क्लियर होगी स्क्रीन। यस, सौरभ, स्वाति, वासुदेव, यामिनी, दिव्यानी, दीपा, भूषण, अंजलि, अंकित, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, yes, sir. राइट, ठीक है। सो व्हाट इज जेनकिंस? सो सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान में रखना है जेनकिंस के बारे में, बाद में के जो बाकी के जो पॉइंट्स है ना वो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी के पॉइंट्स मतलब जेनकिंस को किसने इन्वेंट किया है, कब इन्वेंट हुआ है, कौन से कंपनी का है, दिस थिंग्स इजीली यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल और चैट जीपीटी, डजंट मैटर। व्हाट इज द मेन एंड कोर इंपॉर्टेंट थिंग? जैसे हमने हर टूल में अभी तक अपन ने जितने टूल पढ़े उसमें सब इंपॉर्टेंट चीजें देख, लाइक इन एडब्ल्यूएस we have studied important tools, important services, S3, यहाँ पे EC2 and all. इन डॉकर में बहुत बड़ा है, हमने बस अपने ओरिएंटेड कितना, डेवलपमेंट ओरिएंटेड कितना वो देखा है, एंड मेन चीज है। वैसे अभी जेनकिंस है, so we will integrate all those things like cloud, docker, maven, github, ये सब हम इंटीग्रेट करते हैं किसके अंदर, जेनकिंस के अंदर। ओके, सो अभी बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले, तो थोड़ा यहीं पे थोड़ा ध्यान देना। तो जेनकिंस फॉलो करता है एक इंटरनल आर्किटेक्चर, मास्टर एंड स्लेव। ओके, मास्टर एंड स्लेव। देखो ये टूल का एग्जैक्टली काम क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत इजी, मैंने पहले ही बताया। और इसका एक लोगो है जेनकिंस का, वेटर, अगर आपने देखा होगा तो वेटर मैं दिखाऊंगा बाद में। जेनकिंस का लोगो एक वेटर टाइप बंदा है वहां पे। तो इसका काम क्या है एग्जैक्टली? इट्स वेरी सिंपल, लेमैन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, हम जब भी कुछ डिप्लॉयमेंट करते हैं तो डिप्लॉयमेंट करते समय हमको बहुत सारे टूल की मदद लेनी पड़ती है। गिटअप से कोड लेना पड़ता है, गिटअप से कोड लेने के बाद मैवेन के थ्रू उसको क्या करना पड़ता है, बिल्ड एंड पैकेज करना पड़ता है। उसके बाद में बिल्ड एंड पैकेज करने के बाद डॉकर के थ्रू उसका कंटेनराइजेशन करना पड़ता है, डॉकर फाइल से इमेज बनानी पड़ती है, डॉकर कंपोज से मल्टी कंटेनर बनाने पड़ते हैं, एंड देन फिर हमारा एप्लीकेशन इज रेडी टू एक्सेस। तो ये जो बीच का जो चल रहा है ये डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस है। तो ये गिटअप पर से जब तक कोड नहीं मिलेगा मैवेन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोड ही नहीं मिला तो आप बिल्ड एंड पैकेज क्या करोगे, राइट? समझ में आ रहा है? और मैवेन के साथ में अलाइन कौन चल रहा है, डॉकर। तो जब तक मैवेन बिल्ड एंड पैकेज नहीं करेगा, जार ही नहीं बनी, तो डॉकर फाइल के अंदर जार कौन सी यूज कर रहे हो? सो डॉकर भी मैवेन के ऊपर डिपेंड है। तो ये सब लोग एक में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, इश्यू को अपन लेमैन लैंग्वेज में पाइपलाइन बोलते हैं। तो आपने एक वर्डिंग सुना होगा CI/CD पाइपलाइन, ओके, तो वो एग्जैक्टली ये है, CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, CD कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो ये एक पाइपलाइन है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, so we have one, अभी मैं यही बता रहा हूँ आपको, मास्टर एंड स्लेव के बारे में बता रहा हूँ। so we have one application, like we have Java application, we have Python application, we have Node.js application, doesn't matter, Node.js application, etc, XYZ, okay, so we have this much applications। अभी मुझे क्या करना है, I have developed this application, now मुझे अभी इसको क्या करना है, डिप्लॉय करना है। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ओके, ऑल दी सोर्स कोड हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल जार या फिर वॉर में, राइट? यस और नो? सो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू जार, यूजिंग मैवेन, राइट? ओके, एंड हमारे एप्लीकेशन का सारा सोर्स कोड कहाँ पे? यस, देयर इज वन टूल कॉल्ड गिटहब। सो ऑल दी सोर्स कोड्स आर प्रेजेंट ऑन गिटहब, वी नीड टू टेक all the source code from the GitHub. We need to perform build and package process using Maven. दो टूल आ गए, फर्स्ट टूल, सेकेंड टूल, and after creating jar file we need to dockerize it,
वी नीड टू डॉकराइज इट, सो डॉकर भी आ गया। सो इधर टूल्स कितने यूज हो रहे हैं अभी? 3। अब क्वेश्चन ऐसा है कि गिटअप के ऊपर से सोर्स कोड लिया, जार बनाया और डॉकराइज किया। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, आप कर रहे हो? मैन्युअली हो रहा है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपन कैसे लेंगे गिटअप के ऊपर से? क्लोन करके ले लिया सर, ओके, आ गया सारा का सारा कोड आ गया यहाँ पे। अभी जार बना रहे हो, मैवेन के थ्रू कैसे बनाओगे? यूजिंग गोल्स, क्लीन पैकेज वगैरह गोल्स। जार भी बन गया, अभी डॉकराइज करना है, डॉकर फाइल राइट इट डाउन की, उसके बाद में डॉकर कंपोज राइट इट डाउन की, एंड लास्ट में फिर डॉकराइज कर दिया एप्लीकेशन। सो ये सारा सब कुछ कैसे चल रहा है? मैन्युअली। ये सब कुछ कैसे चल रहा है? मैन्युअली। तो रियल टाइम में कभी भी ये चीज मैन्युअली नहीं होती है, ओके। इसी को थोड़ा सा ऑटोमेट कराने के लिए अपने को एक टूल दिया गया है कॉल्ड एज जेनकिंस। तो जेनकिंस क्या करता है? इन सारे टूल्स को साथ में लेकर चलता है। ये एक मॉनिटर है, ये क्या है? एक मॉनिटर है, मास्टर है, राइट। और डॉकर, मैवेन, गिटअप कौन हो गए? उसके स्लेव्स। सो जेनकिंस से एक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर। सो व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर? जेनकिंस इटसेल्फ इज अ मास्टर, ही इज अ मॉनिटर। और वो मॉनिटर कर रहा है, किसको मॉनिटर कर रहा है? डिफरेंट स्लेव्स वर्किंग इनसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो जेनकिंस में जो डिफरेंट स्लेव्स है, स्लेव्स मींस व्हाट? डॉकर इज वन स्लेव, मैवेन इज वन स्लेव, गिटहब इज वन स्लेव। इफ यू आर यूजिंग सोनार क्यूब, so sonar cube one slave. If you are using nexus is one slave. If you are using ivy is one slave. So whatever the tool you are using for deployment purpose in your project, so this tool will be acting as a slave inside a Jenkins, so that Jenkins will monitor all of our tools. समझ में आ रहा है? Jenkins will monitor all of our tools. वो एक झटके में सबको मॉनिटर कर सकता है, ओके। इतना बड़ा ये टूल है। तो रियलिटी में जो डेवऑप्स इंजीनियर है, जब वो डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइन लिखते हैं, जो भी है पाइपलाइन लिखते हैं, तो किस में लिखते हैं? वो जेनकिंस में लिखते हैं। बिकॉज ऑल द डिफरेंट टूल्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट सर्वर्स। डॉकर ये किसी डिफरेंट सर्वर पे रन हो रहा है, मैवेन भी किसी डिफरेंट सर्वर पे रन हो रहा है। ऐसा है कि एक ही सिस्टम में ये सब लोग है? नहीं, ये सब लोग अलग अलग सर्वर्स पे यूज हो रहे हैं। सोनार क्यूब एक अलग सर्वर पे यूज हो रहा है, नेक्सस एक अलग सर्वर पे यूज हो रहा है, आईवी एक अलग सर्वर पे यूज हो रहा है, ओआप्स डिपेंडेंसी चेकर बोल के टूल है, टूल्स बहुत है, अलग सर्वर पे यूज हो रहा है। तो ये सब लोग अलग अलग सर्वर पे यूज हो रहे हैं। इनको मैं सर एक सर्वर पे क्यों नहीं कर सकता? अरे लोड आ जाएगा ना। एक ही सर्वर पे सोनार क्यूब भी है, उसी सर्वर पे डॉकर भी है, उसी सर्वर पे मैविन भी है, उधर ही बिल्डिंग पैकेजिंग हो रहा है, उधर ही डॉकराइजिंग हो रहा है, उधर ही चेकिंग हो रहा है। तो कितना लोड आएगा उस सर्वर पे? सो वी नीड टू कीप डिफरेंट सर्वर्स फॉर डिफरेंट टूल्स। एंड फिर बाद में हम इन सारे सर्वर जो है, डॉकर का सर्वर, आईवी का सर्वर, सोनार क्यूब का सर्वर, मैविन का सर्वर, गिटहब का सर्वर, इन सबको कनेक्ट करते हैं। और वो कनेक्ट कौन कराता है? जेनकिंस। और जेनकिंस के थ्रू आप एक जगह पर से सबको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि अपने माइक्रो सर्विस में एक सर्विस रजिस्ट्री रहती है। सो सर्विस रजिस्ट्री इज टू मॉनिटर ऑल ऑफ द बैकएंड सर्विसेज एट सिंगल पेज, एट सिंगल स्टेज। एक सिंगल एरिया पे, सिंगल सर्वर पे आप क्या कर सकते हो? आपके सारे माइक्रो सर्विस को मॉनिटर कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी है, जितने टूल्स आपके डिप्लॉयमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, वो हम जेनकिंस के थ्रू एक सिंगल सर्वर पे चेक कर सकते हैं, कौन कौन यूजर है और कौन कैसे काम कर रहा है। वन काइंड ऑफ मॉनिटरिंग यू आर परफॉर्मिंग हियर। सो वो मॉनिटरिंग टूल कौन है? अपना जेनकिंस, ओके। सो इट फॉलोज विच आर्किटेक्चर? मास्टर एंड स्लेव। बाकी सब आपको गूगल से मिल जाएगा, ओके। दैट्स नॉट दिस मच इंपॉर्टेंट। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज मास्टर एंड स्लेव. So Jenkins itself acting as a master, and it has a lot of slaves. Slaves means multiple tools that we are using for the deployment purpose. Okay, right? So अब मेरे केस के अंदर मैंने मेरे एप्लीकेशन का सोर्स कोड गिटअप पे रखा है, राइट? तो गिटअप पर से मैवेन को मुझे वो सोर्स कोड देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं मैवेन को सोर्स कोड दूंगा नहीं, मैवेन जार कैसे बनाएगा? तो मैवेन के सर्वर को कोड देना पड़ेगा। अभी मैवेन ने जार फाइल बनाई, अब उस जार फाइल को मुझे डॉकर के सर्वर को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक जार फाइल उसको दूंगा नहीं, वो डॉकर फाइल नहीं बनाएगा। डॉकर फाइल नहीं बनी, कंटेनर नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा। तो सब एक मेक से कनेक्टेड है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है? एक मेक को क्या करे? कम्युनिकेट करे। किसके थ्रू? जेनकिंस। जेनकिंस इनसे काम करवा कर ले लेता है। समझ आ रहा है? जेनकिंस विल ऑटोमेटिकली पुल द कोड फ्रॉम गिटअप, गिटअप से डायरेक्टली क्या करता है? वो कोड ले लेता है। जेनकिंस विल परफॉर्म
building and packaging process using Maven. And after that, whatever the jar or war file will create, Jenkins will automatically send this war file to Docker for further process, for dockerization, for containers, further process के लिए. तो ये कौन करा रहा है? Jenkins. तो हम जो सर्वर अभी तक यूज कर रहे थे ना अलग अलग, GitHub भी आप अलग यूज कर रहे थे, आप डॉकर भी अलग यूज कर रहे थे, हाँ यहाँ पे मैविन भी अलग यूज कर रहे थे. अब उन सबको मैं कनेक्ट करूंगा और ये मेरी क्या हो गई? एक पाइपलाइन. और मैंने एक बार पाइपलाइन को बिल्ड किया, सो पाइपलाइन में के जो स्टेजेस रहते हैं वो एक एक स्टेज रन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो गिटअब है तो गिटअब का एक स्टेज रन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो गिटअब का काम मैंने जो बोला है जेनकिंस को, तो जेनकिंस क्या करेगा? गिटअब पर से कोड लेकर आएगा, वो भेजेगा मैविन को, मैविन से बिल्डिंग पैकेजिंग होगा. जार फाइल यहाँ पे भेजी जाएंगी किसको? डॉकर को. जस्ट अ मिनट गाइस. Okay, sorry for the interruption. Okay. So, what we are discussing here? पाइपलाइन, राइट? तो जितने भी टूल्स है वो सब पाइपलाइन में यूज करते हैं अपन, अलग अलग यूज नहीं करते. तो फिर आपको लगेगा कि सर पहले अपन गिटअप से क्लोन करते, फिर वो लेने पर मैनुअल पे मैन्युअली, पहले मैन्युअली होता था. अभी जेनकिंस के आने की वजह से क्या है, हम इन सबको एक लेट के साथ में से जुड़ा के काम करा कर ले सकते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और इसमें जो पाइपलाइन बनाने का काम है वो आपका नहीं रहता है, वो डेवऑप्स इंजीनियर का रहता है. आप बोलोगे सर ये डॉकर का सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है? आई डोंट नो, राइट? आप ये बोलेंगे मैविन का सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है? आई डोंट नो, राइट? मुझे तो बस क्या मालूम है, कोड बनाना, डॉकराइज करना, बस इतना ही मालूम है मुझे बाकी की चीजें नहीं मालूम. डॉकर फाइल लिखना, बस इतना ही पता है. तो फिर डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, ये पाइपलाइन आपको रेडीमेड बनाकर दे देता है. ओके, तो उस पाइपलाइन का नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि आपके पाइपलाइन में कौन से टूल यूज हो रहे हैं आपको ही मालूम नहीं. तो फिर वो पाइपलाइन का उसके ऊपर कुछ इश्यू फट गया, कौन कुछ हुआ, तो आप उसको ट्रबल शूट कैसे करोगे? सो यू नीड टू कीप दिस थिंग्स इनसाइड योर माइंड कि जो भी पाइपलाइन यूज हो रहा है वो पाइपलाइन में कौन से सर्वर इधर पिक्चर में आ रहे हैं. ओके, तो अपन प्रैक्टिकली जब देखेंगे मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको. ओके, राइट? तो मैं जैसे बोल रहा था, ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. जैसे कि अभी मैं एक अच्छे से यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बताता हूँ. तो अपने पास में क्या रहता है, एक जेनकिंस का सर्वर रहता है. ये मेरा जेनकिंस का सर्वर है, दिस इज माय जेनकिंस सर्वर. ओके, राइट? सो ये मेरा एक्टिंग एज अ मास्टर, ठीक है ना? आपको कभी इंटरव्यूज में भी अगर जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं वो लोग कभी पूछते भी है कि व्हाट इज जेनकिंस, टेल मी अबाउट जेनकिंस. एक ही वर्ड, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर. फॉलो व्हाट? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर. इतना भी आपने बताया और इसको थोड़ा सा इलैबोरेट किया, लाइक इन CI/CD pipeline in Jenkins we can create CI/CD pipeline and we can monitor it. Okay, इतना भी अगर आपने सही से बताया तो सही हो जाता है. Okay, right? Now Jenkins is acting as a master and all of the worker nodes, or we can say slave nodes acting as a slave. Okay, तो इधर लेट से मेरा कौन है यहाँ पे? GitHub. यहाँ पे कौन है मेरा? लेट से मैविन. और यहाँ पे कौन है? डॉकर. ओके, नाउ द थिंग इज डेवलपर अब क्या करता है, तो मैं आपको एक रियल टाइम यूज केस बताता हूँ. वेयर इज वन डेवलपर, ये मेरा कौन है? डेवलपर. डेवलपर क्या करता है, उसके मशीन के ऊपर जब भी कोड रेडी हो जाता है वो क्या करता है, उसको गिटहब के ऊपर पुश कर देता है. व्हाटएवर द चेंजेस, जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो पुश करेगा. अब पुश करने के बाद जेनकिंस को पता चलता है. ओके, देन जेनकिंस विल परफॉर्म फर्दर ऑपरेशंस, राइट? अब कैसे सीन रहता है इसमें, अभी जब आप कोड को पुश करते हो तो जेनकिंस को कैसे पता चलेगा कि कोड आया है या नहीं आया? तो इसमें दो सेटिंग्स है, एक ऑटोमेटिक वाली और एक मैनुअल वाली.
ऑटोमेटिक वाली क्या सीन है, तो इसमें एक सेटिंग दी थी के अंदर कॉल एज सेम बोलते हैं, और बताऊं वो क्या करता है, चेक करते रहता है कि गिटहब के ऊपर कुछ एक्शंस हुए क्या नहीं, तो कुछ कमिट किया है किसी ने वगैरह, जो भी कमिट आते हैं, जैसे ही उसको मालूम चले कि गिटहब के ऊपर एक्शन है, इमीडिएटली पूरे पाइपलाइन को रन करता है। और इतना ऑटोमेशन यहाँ पे, लेकिन जनरली ऐसे कभी होता नहीं है, मैनुअल अप्रोच, इसके अंदर भी मैनुअल अप्रोच अपने को दिया गया है, हमको खुद मैन्युअली जाके जेनकिंस को बताना पड़ता है या फिर ऑन करना पड़ता है। तो जब मैं कोड को पुश करता हूँ गिटहब के ऊपर, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, तो हम इधर क्या करते हैं, डेवलपर यहाँ पे जेनकिंस पे आ जाता है, क्योंकि उसके पास भी क्रेडेंशियल्स रहते हैं जेनकिंस के। ओके ओके, अगर वो लोग उनके प्रोजेक्ट में जेनकिंस यूज करें तो जेनकिंस के क्रेडेंशियल्स और जेनकिंस में लॉग इन करते हैं, और जेनकिंस में उसको ये पाइपलाइन दिखाई देती है, क्योंकि ये उसकी पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो भी कुछ है P1 लेट्स से, ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन, इमीडिएटली वहां पे वो चेक करता है, और यहाँ पे इस पाइपलाइन को क्या करता है, बिल्ड, क्या करता है, बिल्ड। अब जैसे बिल्ड किया, गिटहब क्या करता है, सारा का सारा कोड यहाँ से टिक को भेजता है गिटहब के ऊपर से, सारा का सारा, ओके, तो गिटहब के ऊपर से सारा का सारा कोड यहाँ पे क्या आता है, जेनकिंस के ऊपर आ जाता है। ओके, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना ऑनलाइन, यस नो, कंफर्म करो, यस। ऑलराइट। सो जो भी कोड है मेरा, वो कोड आ जाता है गिटहब के ऊपर से जेनकिंस, जेनकिंस फर्दर इसको भेज देता है किसके पास में, मैवेन, किस काम के लिए, बिल्डिंग पैकेजिंग, इधर बनती है अपनी जार वॉर, बराबर। फर्दर आर्टिफैक्टरी जेनकिंस को फिर से दिया जाता है, जेनकिंस उसको आगे के लेयर पे भेज देता है, किसके लिए, डॉकराइजेशन के लिए। तो इधर अपनी डॉकर फाइल रहती है, इधर अपनी डॉकर कंपोज रहती है, डॉकर डॉट कंपोज, राइट, फर्दर फाइल्स रहते हैं, इधर अपन फिर उसको डॉकराइज करते हैं, एंड देन फिर अपने को क्या मिलता है, कंटेनर, बराबर, क्या मिलता है, कंटेनर, जहां पे अपना ये एप्लीकेशन रन होता है। ऑल क्लियर ना, राइट। सो इधर यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखा आपने आपने तो बस क्या किया, जेनकिंस के ऊपर जाके इस पाइपलाइन को बिल्ड किया, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक करा रहा है, गिटहब से कोड लेना, मैविन के थ्रू बिल्ड करना, डॉकराइजेशन कर रहा है, ये सब चीजें कौन कर रहा है, जेनकिंस इटसेल्फ खुद कर रहा है। ओके, अभी इन बिटवीन अगर मैविन पे कुछ कोड फट गया, तो जेनकिंस के अंदर अपने को जब भी कोई पाइपलाइन आप रन करते हो, तो ये कंसोल आउटपुट भी दिखाता है अपने को, मैं सारी चीज आपको डिक्टेट वहां पे बताऊंगा, रियल टाइम में रन करके भी दिखाऊंगा। ओके, बनाने का, ये जो पाइपलाइन क्रिएट करने का काम है अपना नहीं रहता है, ये डेवलपर का रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाइपलाइन मैंने बना के रखी हुई है, मैं उसके अंदर आपको समझा कर दे दूंगा कि ये कैसे बनाते, क्या करते। ओके, तो अभी यहाँ पे कंसोल आउटपुट के ऊपर सब चीजें दिखाई देती है कि पहले स्टेज में क्या हुआ, गिटहब ने कितना कोड लिया, कहां से लिया, कौन सी कमांड फायर की, किधर से लिया, सब। दूसरे स्टेज में मैविन क्या क्या कर रहा है, कौन से टेस्ट केसेस इसने रन किए, एवरीथिंग सब ये यहाँ पे समझ में आता है कंसोल आउटपुट पे। तीसरे स्टेज पे क्या हुआ है, तो कभी कुछ एरर इशू वगैरह आ गया तो अपने को यहाँ पे कंसोल आउटपुट पे वो पता चल जाता है, फिर अपन इमीडिएटली उस स्टेज के एरर को जाके ट्रबल शूट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। सो ये जो पहले की जो मैनुअल चीज थी, इन्होंने क्या किया, इसको ऑटोमेट किया है, और इनके ऊपर मॉनिटर कौन रख रहा है, ये जेनकिंस। इसलिए ये टूल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर CI/CD या फिर डेप्लॉयमेंट के लिए डेवऑप्स भी ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज हो रहे होंगे, तो कंपलसरी उधर जेनकिंस होता ही होता है, भले उधर डॉकर नहीं होगा, एक टाइम पे डॉकर नहीं होगा। अपन ने तो देखा है, बहुत लोग डॉकर को अवॉइड करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको लेते हैं, तो भले वहां पे डॉकर नहीं होगा, लेकिन जेनकिंस तो उधर 100% रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा तो जेनकिंस के अंदर ही अपन ये पाइपलाइन बनाते हैं। ऑल क्लियर, यस ईश्वर, ठीक है। नाउ द थिंग इज सर, ये पाइपलाइन जो बनाते हैं इसमें चलता क्या क्या है, मतलब चलता इन द सेंस कि इसमें क्या क्या है ऐसा, तो ऑलरेडी यू नो दैट गिटहब क्या करता है, मैविन क्या करता है, डॉकर क्या करता है, तो फिर भी मैं एक कंसेप्चुअल पार्ट है, इस पाइपलाइन के अंदर दो चीजें रहती है, एक होता है CI और दूसरा होता है CD। ओके, एक होता है CI और दूसरा होता है CD, इसको ओपन क्या बोलते हैं, CI/CD पाइपलाइन। इसका इसका फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन and continuous deployment. Now the thing is, what do you mean by this? Okay, continuous deployment. Okay, इसका मतलब क्या है? So if you see here,
गिटअप से कोड लेके मैवेन के थ्रू आप जार फाइल बना रहे हैं, दिस इज नथिंग बट सीआई। ये क्या है? सीआई। You are integrating the things. Okay, you are integrating all of your source codes into a single file. इंटीग्रेशन मतलब क्या? सारे सोर्स कोड का एक सिंगल फाइल में कन्वर्जन। तो हमारे इस पाइपलाइन के अंदर गिटहब और मैवेन तक, इस स्टेज तक क्या हो रहा है? सीआई। और सीडी मतलब क्या? अभी जो इंटीग्रेशन किया है आपने, जिससे वो फाइल बनी है, वो फाइल को आप डिप्लॉय करना चाहते हो, तो किधर डिप्लॉय कर रहा हूं मैं? इनसाइड अ डॉकर, एज अ कंटेनर। समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है ऐसे डिप्लॉयमेंट में? नॉर्मल टॉमकैट सर्वर, नॉर्मल टॉमकैट सर्वर पे भी आप डाल सकते हो। सो जो डिप्लॉयमेंट रहता है, डिप्लॉयमेंट इन द सेंस सीआई के अंदर ही जो सीडी का पार्ट है, उसमें अपन डॉकर के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। नॉर्मल मेरे पास में टॉमकैट सर्वर है, उसके ऊपर भी मैं ये जार डाल सकता हूँ। मेरे पास में और कुछ कुबरनेटिस क्लस्टर है, उस पे भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल डॉकर पे भी डाल सकता हूँ। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में अगर नॉर्मल सर्वर यूज कर रहे हैं टॉमकैट का, तो जैसे ही यहाँ पे मैविन के ऊपर जार फाइल बन गए, वो ऑटोमेटिकली इधर आएंगे और इधर रन होगी। अगर आप लोग डॉकर यूज कर रहे हैं, तो ये मैविन वाली जो जार है वो जाएंगे डॉकर के पास, डॉकर फाइल रन होंगी। तो अपन छोटा मोटा नहीं देख रहे, अपन डायरेक्ट बड़ा ही चीज देख रहे हैं, डायरेक्ट अपन डॉकर ही देख रहे हैं। तो आपको बताने के लिए वहां पे थोड़ा सा इजी भी होगा। तो बहुत लोग ऐसे भी बता सकते हैं, जो लोग इंटरव्यूज में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग ऐसे भी बता सकते हैं, इन अवर CI/CD पाइपलाइन we are using 4 important tools: Jenkins, GitHub, Maven and Tomcat. Directly finish. Okay, Jenkins is for CI/CD creation. In CI, GitHub and Maven is there. GitHub is basically used to pull the source code. Maven is used for building and packaging process. And whatever the artifact मतलब क्या है? जार वॉर, इसको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लैंग्वेज में आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो जो भी आर्टिफैक्ट बनेगा, उस आर्टिफैक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे। किस पे डिप्लॉय करेंगे? आइदर यू कैन यूज टॉमकैट और यू कैन यूज डॉकर। साथ में यूज नहीं करते, बिकॉज इंटरनली डॉकर कंटेनर किस पे रन हो रहा है? कंटेनर के अंदर टॉमकैट ही है। ओके ना? आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इंटरनल टॉमकैट देता है आपको। ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने इतना भी बताया, गिटहब, मैवेन एंड टॉमकैट सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है। ओके। एंड अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा इन द सेंस बैंकिंग रिलेटेड है, SBI का है, इफ अगर वो लोग CI/CD पाइपलाइन यूज करते हैं, तो उनकी पाइपलाइन बहुत बड़ी रहती है। ओके, ये तो जो टूल्स देख रहे हैं, ये तो एक मेन टूल्स अपन देख रहे हैं, इनके बीच में बहुत सारे टूल्स रहते हैं। अभी वो कौन से टूल्स है लगा, तो मैं एक पूरी पाइपलाइन आपको बताता हूँ अभी कैसे रहती है रियल टाइम में, कि पाइपलाइन वगैरह टूल्स कौन से यूज करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। मैंने पहले ही बोला है, फिक्स नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर इट इज फिक्स, नो, चेंज होता है। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर जब तक आप काम करते नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि बाबा मेरे को डिप्लॉय किधर करना है, ऑल। ओके, अगर इफ दे आर यूजिंग डॉकर, डॉकर आपको आना चाहिए फिर। ओके, क्योंकि आपके डिप्लॉयमेंट में जब आप बिल्ड एंड पैकेज करते हो, तो आपको डॉकर पे डालना पड़ता है कोड को, आपके आर्टिफैक्ट को डॉकर पे डालना पड़ता है, तो आपको डॉकर आना ही चाहिए। इसलिए ये टूल सेपरेटली देखते हैं अपन। तो अपना जो AWS DevOps Linux का कोर्स है, ओके, उसके अंदर ये जितनी भी टूल्स है ना, ये अलग अलग अपन देखते हैं। डॉकर अलग, कुबरनेटिस अलग, एनसिबल अलग, टेराफॉर्म अलग, उसके बाद में AWS अलग, मैवेन अलग, गिटहब अलग, अलग अलग देखते हैं एडवांस लेवल पे। एंड देन फिर बाद में जाके इसको इंटीग्रेट करते हैं CI/CD। ओके, तो किसी को अगर और थोड़ा सा एनहांस करना है, एनहांसमेंट्स अगर इसमें करने हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को रहता है सर मेरे को ये थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें और, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, राइट। तो यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कि अपना डॉकर के ऊपर अपन डिप्लॉय कर रहे हैं, तो CI वाला पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन CD वाला पार्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। ये माइंड भी ये डिफर करता है। अगर आज डॉकर यूज हो रहा होगा, तो कल के आपके प्रोजेक्ट में और एनहांस हो गए, आपके प्रोजेक्ट वालों ने बोल दिया आपको क्या, आप कुबरनेटिस यूज करो डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। सो दिस इज नथिंग बट कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ओके, तो आपको मैंने डायरेक्टली पाइपलाइन में ही बता कर दे दिया, थ्योरेटिकली बहुत है, लेकिन इसको ऐसे समझना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वाला। ऑलराइट, क्लियर है ना? ठीक है, तो एक रियल टाइम में सर पाइपलाइन कैसी रहती थोड़ी बताओ। तो यहाँ पे लेट मी राइट वन पाइपलाइन हियर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिक ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर के जो टूल्स है, वो टूल्स बहुत अलग अलग यूज होते हैं। तो अगेन आपका सबसे फर्स्ट क्या होता है? गिटहब।
जहां से सोर्स कोड लिया ये जाता है मैविन के पास में, बराबर। ओके, नाउ मैविन के थ्रू यहाँ पे एक टूल रहता है सोनार क्यूब। इससे क्या चेक होता है, कोड क्वालिटी चेकिंग होती है। देयर इज वन मोर टूल, आपकी डिपेंडेंसी चेक किए जाते हैं। मतलब क्या होता है, कभी कभी रियल टाइम में ना, ये जो अटैकर्स रहते हैं, अपन जो डिपेंडेंसी लेते हैं ना, अभी जिन लोगों को मालूम है स्प्रिंग बूट वगैरह डिपेंडेंसीज, तो इन डिपेंडेंसीज के थ्रू भी ये वायरस इंजेक्ट कराते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब डिपेंडेंसीज के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो उसके लिए एक अलग से टूल रहता है, एक ओएप्स डिपेंडेंसी चेकर बोल के। ओके, डिपेंडेंसी चेकर ये बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के पाइपलाइन में रहता है ये। समझ में आ रहा है? उसके बाद में फिर अपना क्या रहता है, डॉकर, मतलब इमेज यहाँ पे क्रिएशन होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, जो भी डॉकर इमेज बनी है वो सही है क्या नहीं है, वल्नरेबिलिटी है क्या उसमें, कुछ कुछ इश्यू है क्या, कुछ बग है क्या, वो चेक करने के लिए इधर आईवी बोलकर एक टूल रहता है, आईवी वाई। ओके, उसके बाद में फिर इसको क्या किया जाता है, क्लस्टर पे भेजा जाता है, केट्स क्लस्टर, क्लेस, हाँ सॉरी, यहाँ पे कंटेनर क्रिएट किया जाता है, डॉकर कंटेनर। ओके, ओके, डॉकर कंटेनर। अब इधर से ही जब अपन डॉकर का इमेज बनाते हैं, देयर इज वन मोर टूल, नेक्सस, जहां पे ये इमेजेस को स्टोर करते हैं। जेफ्रॉग नेक्सस बोलकर एक टूल रहता है। डॉकर कंटेनर बनने के बाद में इसका कुबरनेटिस क्लस्टर पे प्लेसमेंट होता है। ओके, एंड देन यहाँ पे एंड यूजर क्या कर सकता है, फिर मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा, ये फिर भी मैंने बहुत लिमिटेड टूल्स इसके अंदर डाले। अगर आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना, तो उसमें माइट भी चांसेस है 10-15 टूल यूज ही होते हैं। ओके, क्लियर है ना? इसमें टेराफॉर्म, एनसिबल, बहुत सारे टूल यूज में आते हैं। तो मैंने एक जनरल आपको बताया। तो इतने बड़े बड़े ऐसे पाइपलाइन रहते हैं। ये बनाने का काम अपना नहीं रहता है, अगेन डेवलपर का काम नहीं रहता है, डेवऑप्स इंजीनियर का काम रहता है। और वो कैसे बनाते हैं, तो वो बनाने की भी उनके पास में वेज रहती है। तो वो क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। वो स्क्रिप्ट का क्या नाम है, पाइथन स्क्रिप्ट और ग्रूवी, पाइथन स्क्रिप्ट और ग्रूवी। तो जेनकिंस के अंदर, अभी आपने बोला कि सर इधर तो जेनकिंस दिखाई नहीं दे रहा है, अरे ये सब जेनकिंस में ही बनाए हैं। समझ में आ रहा है? ये जेनकिंस के अंदर ही है। तो जेनकिंस जेनकिंस के अंदर हम क्या करते हैं, डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम नहीं, मतलब डेवऑप्स इंजीनियर, डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट। वो डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट मतलब क्या, जैसे आपका प्रोग्रामिंग है ना, वैसे थोड़ा सा स्क्रिप्ट है यहाँ पे, बहुत इजी है वो। स्टेज, तो गिटहब इज वन स्टेज, मैवेन इज वन स्टेज, सोनार क्यूब इज वन स्टेज। और उस स्टेज के अंदर क्या क्या हो रहा है उसका कोड हम वहां पे लिखते हैं। आपको दिखा कर दे दूंगा बाद में मैं। ओके, तो ये डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट अपन आइदर ग्रूवी में लिख सकते हैं या फिर पाइथन में। ठीक है, तो ये डेवऑप्स इंजीनियर ऐसे स्क्रिप्ट का यूज करके पाइपलाइन बनाता है। फिर अपन क्या करते सर, फिर अपना क्या रोल है, अपन इस पाइपलाइन को रन करते, बिल्ड करते। क्योंकि जब तक आप इस पाइपलाइन को बिल्ड नहीं करोगे आपके पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, लेट अस कंसीडर अब ये पाइपलाइन है किसके लिए, डेव सर्वर के लिए, वैसे ही सेम पाइपलाइन क्यूए के लिए होंगी, ऐसी ही सेम पाइपलाइन प्रोडक्शन के लिए होंगी। कितने सारे पाइपलाइन हो गए फिर, 3। तो जितने आपके एनवायरमेंट से उनके हिसाब से पाइपलाइन रहते। तो अभी मुझे मेरा कोड जो है वो किस पे डालना है, डेव के ऊपर। तो मैन्युअली जार बना के डालू क्या वहां पे, नहीं, कुछ नहीं करने का। आपने कोड डाला ना गिटहब पे, अभी अभी आपने गिटहब पे कोड डाला। अब आप आ जाओ कहाँ पे, जेनकिंस के अंदर। जेनकिंस में आने के पास इस पाइपलाइन को आप क्या करो, सिंपल बिल्ड करो। जैसे ही आपने बिल्ड किया, हो जाएगा चालू ये। पहले गिटहब, मैवेन, सोनार क्यूब सब एक बार स्टार्ट हो गया। लास्ट तक आने तक कुछ इशू विशू आता है तो वो स्टेज व्यू के अंदर अपन जाके चेक करते हैं। ओके, देन फिर आपके डेव के सर्वर के ऊपर या फिर डेव के ऊपर आपका वो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाता है। तो अभी ये बहुत इजी है, पहले बहुत ये हार्ड था, बिकॉज पहले ये कंसेप्ट भी नहीं थे डॉकर, कुबरनेटिस वगैरह। पहले डायरेक्टली मैन्युअली चलता था सब, सब अपन लेते थे, मैन्युअली करते थे, मैन्युअली जार बनाते थे और उसको अपन भेजते थे किसको, क्यूए वाले को, मेल के थ्रू या फिर जो भी है टीम्स के थ्रू। अभी वैसे नहीं है, अभी ये थोड़ा सा कंटिन्यूस है। अभी डेवलपर को ही डेप्लॉयमेंट आनी चाहिए। तो डेवलपर को डेप्लॉयमेंट आना मतलब क्या, ये
व्हाट इट ना। ओके, डेवलपर को डिप्लॉयमेंट आना मतलब क्या, ये सारी चीजें। ओके, सो जो डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है वो कुछ अलग काम नहीं करता, वो इस CI/CD पाइपलाइन होंगी तो इस पाइपलाइन को रन करता है। और अगर कुछ बीच में इश्यू आता है, लेट्स से सोनार क्यूब पे इश्यू आया, डॉकर का सर्वर बंद हो गया, चल रहा नहीं है, तो फिर वो रहता है, फिर वो उधर उधर पर्टिकुलरली उस स्टेज के अंदर जाके उस सर्वर को फिक्स करता है। डेवऑप्स इंजीनियर पे डेवलपमेंट इंजीनियर अपना काम क्या है, अपना काम बस इसको रन करना। अच्छा, कोडिंग के थ्रू कुछ इश्यू आया, एक्सेप्शन आ रहा है, फिर वो आपको रिजोल्व करना पड़ता है। इसलिए डिप्लॉयमेंट करते समय भी आपका वहां पे प्रेजेंस होना जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, वो भी रहते हैं कॉल के अंदर, वो कॉल में रहते हैं सब लोग। तो डेवलपर को भी उधर होना जरूरी, क्यों? क्योंकि कल को जाके अगर गिटअप से कोड लिया, मैविन भी कोड फट गया, इंटीग्रेट करते ही कोड प्रॉब्लम आगे, तो चलो ठीक है, तो ये जेनकिंस आगे का पाइपलाइन रुका देता है इधर ही। जैसे एक्सेप्शन रहता है ना अपना, एक्सेप्शन आने के बाद क्या होता है, आगे का कोड रन होता है क्या? नहीं, इधर भी वैसे ही है, आगे का पाइपलाइन बंद हो जाएगा सब, इधर ही क्या हो जाता है, इशू आ गया। अच्छा, ये इशू किसकी वजह से आया, इज इट अ सर्वर साइड और क्लाइंट साइड? तो डेवलपर साइड से इशू आता है। एक्सेप्शन मतलब क्या, डेवलपर का एरर रहता है, तो डेवलपर साइड का प्रॉब्लम है, तो डेवलपर इसको जब तक फिक्स नहीं करता आगे का काम नहीं होगा। इसलिए डिप्लॉयमेंट करते समय उस कॉल में डेवलपर को भी होना जरूरी है, कुछ इशू वगैरह आया तो। ठीक है ना, राइट? तो अपने को ये पूरा पाइपलाइन पता होना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे सर ये सब ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? मैंने अगेन बोला है गाइस, नो। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है। मैंने ऊपर वाला जो पाइपलाइन बताया, दिस इज ऑल्सो सफिशियंट, बहुत सारे लोग उतना भी यूज करते हैं। तो खास अगर आप लोग अपने यहाँ से अगर मतलब लेट से प्रोजेक्ट वगैरह आप खुद से कर रहे हो, तो आप ये वाला पाइपलाइन भी मेंशन कर सकते हो। कौन सा? ऊपर वाला जो मैंने बताया, चार टूल वाला, ये पाइपलाइन आप मेंशन कर सकते हो इन योर प्रोजेक्ट। लाइक इफ अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है, हैव यू परफॉर्म एनी डिप्लॉयमेंट एंड ऑल, यस, तो वो आपको पूछेगा, इलेबोरेट करो, उसको एक्सप्लेन करो। सो इन दैट केस यू नीड टू एक्सप्लेन दिस होल थिंग्स स्टार्ट टू एंड। ओके ना? तो चलो अभी इसका क्या कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके, आई हैव क्रिएटेड वन जेनकिन सर्वर अगेन, बिकॉज सी ये हमको खुद करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी रेडीमेड रहता है। अपने को क्या मिलते हैं, बस क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम पासवर्ड, जाना यूजर नेम पासवर्ड डालना है जेनकिंस पे, उधर अपने को वहां पे अपनी पाइपलाइन दिखाई देती है, उसको बस बिल्ड करना पड़ता है। तो मैंने एक पाइपलाइन बना के भी रखी हुई है, ये गिटहब, मैवन और डॉकर की। उधर मैंने एक दो बार जानबूझकर उसको फेल भी कराया है, ताकि आपको दिखाने के लिए कि वो फेल होने के बाद कैसे दिखता है ये। ओके ना? तो अभी अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने जेनकिंस के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी मिनट, मैं मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।
ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, सो इज माय स्क्रीन विजिबल? यस। ऑलराइट, सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन जेनकिंस कंटेनर। ठीक है, मैंने इसमें ही कंटेनर बनाए जेन। वैसे तो जेनकिंस को आप नॉर्मली भी इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके, लेकिन ये जेनकिंस को चलाने के लिए आपको JDK 11 एंड अबाउ चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी 1.8 का जो ये है सपोर्ट है वो निकाल दिया है। तो अभी वो लोग बोलते हैं कि जेनकिंस को चलाने के लिए आपको कंपलसरी क्या चाहिए, 11, JDK 11 एंड अबाउ। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप गूगल के ऊपर जाकर डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट उधर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। समथिंग 2.5 कुछ तो एक वर्जन चल रहा है इन लोग का। तो ऐसे कुछ नहीं कि लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए, नहीं, हर जेनकिंस के ऊपर वही काम होता है। अभी ये 7740 के 7070 के ऊपर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कॉग्निटो मोड पे, ठीक है, लोकल होस्ट, सो 7070। ऑलराइट, ओके, रनिंग। ऑलराइट, सो डैशबोर्ड जेनकिंस, राइट? ओके, सो दैट्स द जेनकिंस डैशबोर्ड। ओके, अब इसमें क्या सीन है, इसमें ये पहले यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, आपको पहले यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ता है। अब मेरे केस में क्यों नहीं पूछा, बिकॉज मैंने वो वाली सेटिंग इसमें डिसेबल कर रखी है। एक्चुअली में इधर विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स लॉग इन करना है, या ऐसे मैंने करके रखा हुआ है। ओके, यस, सो ये अपना जेनकिंस है। अभी इधर बहुत सारी चीजें, तो इधर सबसे पहले तो मैं सेटिंग पे चला जाता हूँ। ओके, एंड इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब अपना इंपॉर्टेंट चीजें है। प्लगइन्स, सो प्लगइन्स, टूल्स, सिस्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी डॉकर मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। अभी मेरे पाइपलाइन को लगने वाली जितनी भी चीजें हैं, अभी जो भी मुझे पाइपलाइन क्रिएट करना है, उसको बनाने के लिए लगने वाली जितनी भी चीजें, प्लगइन बोलो, टूल्स बोलो, वो सब मैं इधर से लेता हूँ। तो प्लगइन्स के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है, अपडेटेड जितने भी प्लगइन्स हैं जेनकिंस के अंदर वो सारे। तो अभी यहाँ पे इतने ये जो प्लगइन्स है यहाँ पे, अवेलेबल प्लगइन्स एंड इंस्टॉल प्लगइन्स। तो अवेलेबल प्लगइन से जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो और सर्च करके आप उसको इंस्टॉल करा के लेते हो। तो लेट्स से इंस्टॉल प्लगइन्स पे मैं जाता हूँ। इधर मैंने सम प्लगइन्स इंस्टॉल किए लाइक गिटहब वगैरह। अब कैसे है इसमें, जब आप जेनकिंस को इंस्टॉल करते हो ना, आते समय ये थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करके लाता है, लाइक गिट है, गिटहब है, मैवेन है वगैरह। तो ये देखो, ये सारे इंस्टॉल प्लगइन्स है। राइट नाउ भी इतने सारे प्लगइन्स को मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ओके, तो कितने लोग यूज कर रहे हैं वगैरह सारी चीजें रहती है, गिटअप प्लगइन्स वगैरह। इधर अगर मैविन देखा आपने, तो मैविन की भी सम प्लगइन्स है, मतलब मैविन की चीजों को इंटीग्रेट करना है तो देखो मैविन इंटीग्रेशन प्लगइन। उसके बाद में डॉकर यूज करना है तो डॉकर की भी सम प्लगइन्स है, ये देखो डॉकर एपीआई प्लगइन, पाइपलाइन। उसके बाद में लेट्स से गिटहब, तो गिटहब की रिगार्डिंग तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली डेवलपर को कोई यूज नहीं रहता है। डेवऑप्स इंजीनियर जब पाइपलाइन बनाता है ना, तो पाइपलाइन बनाने के लिए उसको प्लगइन लगता है, और वो प्लगइन वो यहाँ से डाउनलोड करता है, बिकॉज विदाउट प्लगइन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अभी जेनकिंस के ऊपर हमको क्या करना पड़ता है, पाइपलाइन रहती है। तो जब आप जेनकिंस के क्रेडेंशियल्स डालोगे, आपका टास्क हो गया, अभी आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला। अब यहाँ पे आपको ऐसे पाइपलाइन दिखाई देंगे, दिस इज द पाइपलाइन, इफ यू सी, ये देखो, एसबी डॉकर वगैरह, ये पाइपलाइन है। ये दो पाइपलाइन मैंने बना के रखे हुए थे। ओके, तो डेवलपर का क्या काम रहता है, इन पाइपलाइंस को बिल्ड कराना। अब पहली बात तो इन पाइपलाइन के अंदर है क्या वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इधर राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर पे आ जाता हूँ। एसबी डॉकर, ये जो अपना लास्ट सेशन में अपन ने डॉकराइज किया था ना एप्लीकेशन, पहले मैंने क्या किया था, हाँ, वहां पे मैंने सोर्स कोड के थ्रू ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में मैंने जार फाइल बनाई। वो जार फाइल से फिर डॉकर फाइल में इमेज क्रिएट किया, फिर इमेज बनाने के बाद कंटेनर, ये सब मैंने मैन्युअल किया। इधर सब एक झटके में हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि सब मैंने कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है, यूजिंग स्क्रिप्टिंग। ये देखो, ये स्क्रिप्ट है। ओके, दिस इज नथिंग बट वन स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है। अभी स्क्रिप्ट में क्या है, तो पहला स्टेज क्या है, चेकआउट द कोड, मतलब क्या है, गिट ब्रांच। तो मैंने एक ब्रांच है, ये अपनी गिट है, गिटहब के ऊपर मैंने
रिपोजिटरी बनाई है, उस रिपोजिटरी में मैंने मेरे सारा कोड डाल के रखा हुआ है, ओके ना। तो इस गिटहब रिपोजिटरी पर से क्या होगा, कोड यहाँ पे पुल होगा, सारा पुल होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, बिल्डिंग एंड पैकेजिंग, बिल्ड विथ मैविन, बिल्डिंग एंड पैकेजिंग, ओके। तो बिल्डिंग एंड पैकेजिंग होने के बाद में यहाँ पे जो भी जार फाइल बनने वाली वो नेक्स्ट स्टेज को यहाँ पे दी जाएंगी, जिसमें डॉकर कंपोज कर रहे हैं अपन। तो डॉकर कंपोज के थ्रू अपन मल्टी कंटेनर बनाते हैं ना, तो आपको सारे कंटेनर्स यहाँ पे बनेंगे, ऑलराइट। तो ये 3 स्टेज की पाइपलाइन मैंने यहाँ पे बनाया, और मुझे टूल जो लगने वाले वो जेडीके, मैविन, ये टूल्स यहाँ पे लगने वाले हैं। ऑल क्लियर, राइट। सो ये जो स्क्रिप्ट है ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वहां पे बना के रखी हुई रहती है, समझ रहे हैं? ये अपने को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अपना काम क्या है, बस अपना काम इन पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन है, CI/CD पाइपलाइन को रन करना है। तो अब जब मैं इसको बिल्ड करूंगा तो ऑलमोस्ट देखो मैंने लास्ट टाइम पे बहुत सारे बिल्ड किए थे, ओके, जानबूझ के, और थोड़ा उसमें मैंने मिस्टेक भी किया था जानबूझ के, ताकि आपको दिखा सकूं। तो कुछ बिल्ड्स यहाँ पे सही से सक्सेसफुली रन हो गए, कुछ बिल्ड्स यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो इफ यू सी हियर, दीज आर दी स्टेजेस। देखो चेकआउट वाला पहले रन हुआ 4 सेकंड, फिर 14 सेकंड मैवन वाला रन हुआ, और फिर डॉकर कंपोज वाला रन हो गया। तो अगर किसी स्टेज में मेरा कोड फट भी जाता है तो लेट्स से कि मैं उस स्टेज का लॉग चेक कर सकता हूँ। ये देखो इधर लॉग्स पे क्लिक करके अपन लॉग्स भी देख सकते हैं, उसके क्या क्या लॉग्स है वगैरह सारे के सारे, ओके। तो कंसोल आउटपुट जो रहता है ना वो आपको इधर दिखाई देता है, एज यू कैन सी, ये देखो ऐसे कंसोल आउटपुट दिखाई देता है। ऑल क्लियर ना, राइट, ओके। तो हमारा काम क्या है, पाइपलाइन को रन कराना, बिल्ड कराना और चेक करना। अब ऐसे ही आपको रियल टाइम में भी ऐसे ही दिखाई देता है आपको। अगर कोई यहाँ पे वर्किंग में होगा, जो लोग CI/CD यूज कर रहे हैं और जेनकिंस के थ्रू बिल्ड करते हैं, 100% ये चीजें वहां पे जेन्युइन है। तो आपको ऐसे ही हुई चीजें दिखाई देती है वहां पे भी। और ये जो स्टेजेस है 1 2 3 4, उधर बहुत रह सकते, 5 6 रह सकते, डजेंट मैटर, बहुत सारे रह सकते, वी डोंट नो। तो अभी मेरे केस में मैंने बस 4 ही रखे हुए। तो यहाँ पे जब भी मेरा फेल होता है, लेटेस्ट कंसीडर कि अभी ये फेल हो गया, किस पे फेल हो गया, चेकआउट पहले ही स्टेज पे फेल हो गया, तो मैं इधर से जाके लॉग चेक कर सकता हूँ, लॉग चेक कर सकता हूँ। इधर लॉग में मुझे क्या मिला है, तो लॉग में मुझे मिल रहा है, ये देखो, ये क्या बोल रहा है ये, हाँ, रिकमेंडेड गिट टूल, मतलब इसके अंदर गिट टूल नहीं था। समझ में आ रहा है, नॉट इन अ गिट डायरेक्टरी, मतलब मैंने जो रिपोजिटरी दी थी उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, तो इट इज नॉट अ गिट डायरेक्टरी। तो ऐसे हमको लॉग्स भी हम देख सकते कि कौन से स्टेज में हमारा फट गया है कोड, ओके। सो मैं इधर क्या करता हूँ, अभी एक बिल्ड दे देता हूँ, सो बिल्ड नाउ। सो अभी देखो एक 20 नंबर की बिल्ड स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो ऐसे स्टार्ट होता है ये, ओके। अब ये क्या करेगा, लेट मी शो यू कंसोल आउटपुट, उधर से अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो, ये पहले अभी सारा का सारा सोर्स कोड मेरा गिटहब के ऊपर से लाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है सभी को, सोर्स कोड लेकर आएगा, फिर यहाँ पे दूसरी जो ये देखो गिट से ला रहा है सोर्स कोड सारा। अभी देखो ये बोल रहा है द रिकमेंडेड गिट टूल इज नन, तो यहाँ पे मुझे इमीडिएटली क्या कर सकता है, एरर भी दे सकता है। और अगर इसको गिट टूल वहां पे सही से मिला तो ये सही से भी चल होता है, मतलब पूरा पूरा एक सही से यहाँ पे रन भी होता है, ओके, ऑलराइट, ओके। सो अभी देखो फर्स्ट स्टेज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेज के लिए कौन सा है, यहाँ पे देखो मैविन वाली स्टेप अभी स्टार्ट हो गई, मैविन क्लीन पैकेजिंग, स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, ये मैविन का चालू हो गया, गॉट इट, पहला स्टेज कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेज चालू हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, ये पैकेजिंग, बिल्डिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस। तो देखो कितना मतलब सोफिस्टिकेटेड सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। तो अभी नाउ डेज ये, अभी मुझे बताओ मैन्युअली कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, अभी बस करो डायरेक्टली गिट पर से लेंगे कोड, मैविन के तो बिल्ड पैकेज, और जो डॉकर है, डॉकर का कंटेनर भी इधर बनेगा। जो हमने जो डॉकर में मैन्युअली किया था ना, वो कमांड में इतना डाल के, इधर ऑलरेडी वो सब कमांड मैंने लोड करके रखे हुए जो स्क्रिप्ट के अंदर। तो इधर क्या करना है, ये देखो ये भी बिल्ड सक्सेस हो गया, जार फाइल बन गई। अब जार फाइल अगले स्टेज को दी जाएंगी। अब अगला स्टेज कौन सा है, डॉकर कंपोज। ये देखो कंटेनर एसबी डॉकर माइस्क्यूल करे, सब ये खुद करा कर दे रहा है। ऑल क्लियर ना, राइट। एंड अभी यहाँ पे कंटेनर बने, मतलब ये डॉकर डेस्कटॉप पे भी दिखाई देने चाहिए, बराबर, कंटेनर बने, चेक करते हैं। ये देखो क्या है, फिनिश्ड सक्सेस, मतलब अपनी ये जो बिल्ड है ये सक्सेसफुली रन हो गई है। नाउ अभी मुझे मेरा एप्लीकेशन एक्सेस करना है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो लॉग्स के अंदर। तो ये देखो ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे स्प्रिंग बूट माई एसक्यूएल DB1 क्रिएटेड, क्रिएटिंग, स्टार्टेड, ओके। दोनों भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, स्प्रिंग बूट का भी और एक माई एसक्यूएल का भी। तो इधर आके मैं चेक करता हूँ बने क्या नहीं वो डॉकर डेस्कटॉप में।
ये देखो ये बने यस बी डॉकर, रनिंग में भी है वो। तो ये मैंने बनाया क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिकली गिटहब के ऊपर से सोर्स कोड लेके बिल्डिंग पैकेजिंग करके ऑटोमेटिकली पाइपलाइन यहाँ पे रन हो गई। सो दिस इज पाइपलाइन ऑपरेशन। आपको डिप्लॉयमेंट ये बताना पड़ता है रियल टाइम में, हमने ऐसे डिप्लॉयमेंट किया है। ऑल क्लियर ना? यस। तो इसके साथ में हमारे साथ में और क्या क्या चीजें अलाइन रहती है? बहुत सारी चीजें अलाइन रहती है इसके साथ में। अब आगे का स्टेज दूसरा भी रह सकता है। इसके अंदर अभी जितने मैंने डाले हुए स्टेजेस है तो बस 3 ही स्टेजेस है, और भी बहुत सारे स्टेजेस रह सकते हैं। ओके राइट, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो स्टेजेस में दिखाता हूँ आपको। तो फिलहाल के लिए तो अभी इतने स्टेजेस है यहाँ पे। इफ यू सी हियर, ये देखो 4 ही स्टेज है बस यहाँ पे। पहला स्टेज है ये सारा इंस्टॉलेशन करता है अपने जेडीके का और मैवेन का। उसके बाद में चेकआउट कोड मतलब गिटहब पर से लाता है, बिल्ड विथ, और इसका नाम बदल सकते हो, ये फिक्स नहीं रहता है। ओके, कुछ भी रख सकते हो। बिल्ड विथ मैवेन, मैवेन के थ्रू बिल्ड कर रहा है। एंड डॉकर कंपोज ऑफ मतलब डॉकर एनवायरमेंट में मैंने उसको क्या किया यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। ऑल क्लियर ना? तो कभी कभी मेरा कोड फट भी जाता है तो मैं यहाँ पे बीच में आके चेक कर सकता हूँ, जहां कहीं पे भी फटा है, जिस किसी भी स्टेज पे फटा है तो उसके ऊपर आके मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या इश्यू आया है। तो देखो इधर इंस्टॉलेशन तो हो गया लेकिन चेकआउट पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो मैं आके इधर लॉग चेक कर सकता हूँ एग्जैक्टली किधर लॉग है, क्या लॉग है। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड योर लॉग्स। ये टूल से बहुत इजीली आप लॉग्स चेक कर सकते हो, आपके पाइपलाइन क्यों फट गए, क्या इश्यू आया है। तो लेट से इधर 15 वाला बिल्ड है, अपन दूसरे वाले बिल्ड पे जाते जहाँ पे लास्ट में अपना फटा होगा, लाइक डॉकर वगैरह पे। तो 14 वाला बिल्ड है। तो ऐसे बिल्ड हिस्ट्री भी रहती है आपके पास में कि आपने कितने सही किए। तो 13 वाले बिल्ड पे देखो पहले 3 स्टेज तो रन हो गए लेकिन लास्ट वाले स्टेज पे मेरा कोड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। 16 वाले स्टेज पे भी सेम यही हो गया। तो अभी क्यों हुआ योगेश, अभी चेक करना अपने को। तो फिर अपन कैसे ट्रबल शूट करेंगे? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका लॉग देखना पड़ेगा। तो आप कंसोल आउटपुट से लॉग देख सकते हो। ओके, तो इफ यू सी हियर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया, ये देखो ये प्रोग्रेस मतलब क्या है, डाउनलोडिंग फ्रॉम सेंट्रल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंट्रल? मैवेन रिपोजिटरी। समझ में आ रहा है? डाउनलोडिंग फ्रॉम सेंट्रल रिपोजिटरी। तो ये देखो इतने सारे लॉग्स रहते हैं। इफ यू सी हियर इतने सारे लॉग्स रहते हैं। ओके राइट, तो इधर फेल्यूर हो है, लास्ट में अपना क्या हो गया था, फेल्यूर हो गया था। तो कौन से लेवल पे फेल्यूर हो गया, तो इसका स्टेज व्यू अपन देख सकते हैं। सो पाइपलाइन ओवरव्यू, राइट या ये देखो। तो हमारा सामने की 3 हो गए लेकिन 16 बिल्ड के अंदर मेरा डॉकर कंपोजअप में थोड़ा सा कोड इशू कर गया। तो किसकी वजह से आया इशू? तो इधर देखो डॉकर कंपोजअप, तो वो क्या बोल रहा है, डॉकर कमांड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मेरे उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल ही नहीं था। ऑल क्लियर ना? तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट भी इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो रियल टाइम में एज अ डेवलपर आपको जेनकिंस टूल इधर तक पता होना चाहिए। ओके, ऑल क्लियर राइट? ओके, ऑलराइट, सो एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज गाइज, तो अपन यहीं पे इस सीरीज को कंक्लूड कर रहे हैं। ओके राइट, सो व्हाट एवर द थिंग्स एज अ डेवलपर यू मस्ट नो अबाउट द रिगार्डिंग दिस डिप्लॉयमेंट एंड क्लाउड, so these are the things। अब ये जो चीजें हैं ये हम क्लाउड के ऊपर से भी ले सकते हैं। मतलब क्लाउड के ऊपर से लेना मतलब क्या, क्लाउड के अलग अलग सर्विसेस आते हैं। कोड कमिट बोलकर एक सर्विस है जो आपका गिटहब जैसे काम करता है। उधर ही एक सर्विस है आपका लेट्स से कोड पाइपलाइन बोल के, जो आपका जेनकिंस जैसे काम करता है। मतलब आप ये क्लाउड के थ्रू भी ले सकते हो एज वेल एज आप ये मैन्युअली भी कर सकते हो। अभी जो मैंने अप्रोच यूज किया है ये सब मैन्युअल अप्रोच। मैन्युअल मतलब क्या गाइस, ऑटोमेशन तो हो रहा है लेकिन जेनकिंस मैंने इंस्टॉल कैसे किया, मेरे डेस्कटॉप के अंदर। ओके, बहुत लोग क्लाउड यूज करते, डायरेक्टली क्लाउड के अंदर ही जेनकिंस यूज करते हैं, सर्वर पे EC2 सर्वर पे जाके उधर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स। सर्वर का काम सर्वर भले ही प्लेटफॉर्म अलग क्यों है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म अलग क्यों ना हो, वहां पे अंदर तो काम एक ही चल रहा है ना। जेनकिंस में कुछ अलग काम नहीं चलेगा, वही काम चलेगा। ओके, ऑलराइट, so yes, so if anybody has any doubt you can ask